My dear student, this is Uttam De from JNB Hailakandi, Assam. Today we will learn about joint stock company is a form of business. Its meaning, characteristics, merits, demerits, and types of company in this video. And next video we will learn formation of company. Okay, let's start. This is the lesson plan. See, first let us recall the earlier things so that we can acquaint ourselves relating to business organization. The term business organization means is nothing but a business organization refers to how a business structure is structured. It refers commercial, industrial, enterprise and people who constitute it. What is business organization? If somebody asks, you can say in this way. It is not a matter. Now you see, my dear student, in an economy, the institutions, organizations are there. Economic activities, production, distribution. So all the organizations are categorized on the basis of ownership. Three categories in an economy. First category you see private, second cooperative, and public sectors. In private sector means owners are individuals or individual. Cooperative is nothing but a group of persons belongs to same community or same village. They are performing particular economic activity jointly. Public sector means performed by the government, the economic activities. Let's see under private sector or you can say private enterprise, what are the different forms of business organizations. Individual organizations, individual ownership means sole proprietorship. Partnership, two or more persons working together. Now joint stock company, and joint stock company divided into two parts. Private limited company and public limited company. Then see cooperative sectors are producer cooperative society, consumer cooperative society, housing cooperative society, trade cooperative. All these are nothing but our earlier chapters knowledge. Then you see public sector formation. They are also involved in production, distributions. The government departments are there, government company and statutory corporation, statutory body. These are the economic structure of a country, in our country. Now, these types of business organization comes under private sectors. Are you getting? Sole proprietorship, joint into family, partnership, joint stock company, private limited, public limited, one person company. That is very important. It is newly introduced. In 2013 Companies Act, it was introduced. Cooperative business, cooperative. Now we know this about the sole proprietorship. अकेला मालिक है, अपना मन मर्जी बिजनेस करेगा, प्रॉफिट होगा एंजॉय करेगा, बहुत सारे खुद से कंट्रोल करेगा, जो मर्जी जब चाहे तब कर सकता है. ये सब है, हम लोग को मालूम है क्या क्या एडवांटेज है. इजी फॉर्मेशन, बहुत आसानी से कोई स्टार्ट कर सकता है. कोई भी अकेला मालिक बिजनेस वो खुद से कंट्रोल कर सकता है, प्रॉम्प्ट डिसीजन ले सकता है, कुछ व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, सब्जेक्ट टू फ्यूअर गवर्नमेंट इंटरवेंशन है ही नहीं, फटाफट अपने से मैनेज कर सकता है. कोई इनकम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का कोई प्रेशर नहीं है, मालिक हो जाता है पूरा. सोल प्रोप्राइटरशिप का जो प्रॉफिट होता है वो पूरा मालिक एंजॉय करता है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर. व्हाई सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल केसेस? This is why it is not ultimate. Very important. Mind it. Don't forget the weakness or limitations of sole proprietorship. Here we see owner has unlimited liability. Very important. कोई भी बिजनेस का लॉस है अल्टीमेट
ओनर का ऊपर सारा चक्कर आएगा। फायदा होने से तो मजा है, लेकिन कोई लाइबिलिटी, बिजनेस लोन लिया, बिजनेस नहीं वापस कर पा रहा है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर टू रिपे। अब पैसा का जरूरत है, इफ फंड नीडेड, कैन नॉट अनेबल टू रेज फ्रॉम मार्केट इजीली, वेरी टफ, हैज लिमिटेड लाइफ। ओनर जिंदा है, बिजनेस जिंदा है, ओनर मर गया, जनरली बिजनेस सफर, डिफिकल्ट टू डू बिजनेस बियॉन्ड द सर्टेन साइज, थोड़ा बड़ा हो नहीं सकता है, बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है, अकेला कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब मार्केट डिमांड बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, संभव नहीं होता है। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट वीकनेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाई जॉइंट स्टॉक कंपनी? टू अंडरस्टैंड better, we see the earlier, we have whatever we have learned in earlier classes, these are organizations: sole proprietorship, partnership, joint in the family, cooperative. So what are the weakness or what are limitations suffered by this organization? Let us recall. Next you see joint in the family. In our India we have learned joint in the family where head of the family is करता, manage all the activities और taking decisions। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, you see, इस पर हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट के अंदर में चलता है, ओनली इंडिया में मिलेगा। और सब मेंबर को क्या बोलते हैं? को पर्सन, हियर इट इज नॉट मेंशन, यस मेंशन है, द जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है हेड ऑफ द फैमिली चलाता है, इट्स नोन एज करता, और ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड एज को पर्सनस। Okay, see the member is restricted only to the members of family। कोई भी जन्म लेगा फैमिली में वही मेंबर बनेगा। This is the picture you can see। करता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हाँ, अल्टीमेट करता है इज रिस्पांसिबल टू जस्ट लाइक सोल ट्रेडिंग। कोई अगर बिजनेस का लोन वापस नहीं कर पा रहा है बिजनेस, तो करता ही इज रिस्पांसिबल है, तो उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाता है। शेयर ऑफ मेंबर केस फ्लक्चुएटिंग, चेंज होता रहता है, आज 10 है कल 15 हो जाएगा मेंबर, तो शेयर चेंज होता रहेगा। बिजनेस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। एडवांटेज तो है, बहुत सारे एडवांटेज है उसका, और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज वीकनेस। यू सी को पर्सनल एश्योर्ड शेयर्स को मिलेगा ही, बिजनेस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट चलेगा, डिसीजन मेकिंग क्विक होता है, करता रहता है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। People use it mostly for tax benefit। टैक्स बेनिफिट लेने के लिए हिंदू फैमिली में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करता है, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वीकनेस, सी एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। कर्ता के हाथ में सभी रहते हैं, बाकी जितना मेंबर है बेकार है, कर सकता है, कोई अपना हेडेक ले सकता है, नहीं भी ले सकता है। तो इसीलिए बिजनेस को स्टेबल कराना मुश्किल हो जाता है, इंस्टेबिलिटी हो जाता है, और रिसोर्सेज बहुत कम होता है, लिमिटेड रिसोर्स, कैन नॉट बी रेज्ड फ्रॉम आउटसाइड इजीली, और कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस रहता है, एक दूसरे से लगाव हमेशा झगड़ा रहता है। सो दीज आर वीकनेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज। नेक्स्ट वी नो पार्टनरशिप फॉर्म, टू और मोर इंडिविजुअल्स join and they are together to conduct business activity। what are advantage you know? इजी फॉर्मेशन, लार्ज, थोड़ा ज्यादा रिसोर्स है कंपेयर, इफ यू कंपेयर विद द सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें थोड़ा ज्यादा रिसोर्स मिलेगा, हाँ रिस्क भी शेयर हो जाएगा, थोड़ा सुविधा है, बेटर मैनेजमेंट हो सकता है कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग, इसमें भी नो कॉर्पोरेट टैक्स है, कंपनी का कोई टैक्स नहीं है, फ्यूअर थोड़ा बहुत रेगुलेशन है अंडर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में मान के चलना पड़ेगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज बहुत बड़ी बात है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो मालिक है सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, सब अपने ऊपर है, हेडेक है। सिमिलरली पार्टनरशिप में पार्टनर्स के ऊपर सब हेडेक है, पार्टनर्स आर रिस्पांसिबल। कोई बिजनेस का अगर लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, अल्टीमेट ओनर्स आर रिस्पांसिबल, ओनर को जवाब देना पड़ेगा। ओनर इज टू, कोई लॉस, कोई लोन लिया उसको वापस नहीं कर पा रहे, तो ओनर इज टू बियर, owner is to repay। So this liability is not limited, unlimited of individual member or individual partner, very important। Life is also sometimes not certain that it will continue year after life after life। Same point, very difficult to raise fund from general public,
or general market, there is a chances of dispute because 2-3 persons are when taking decisions that there is a most of the time it is found that disputes among the owners or partners. These are the weaknesses we have learned. Cooperative आपको मालूम है, Amul is a great example for cooperative. You know, it is nothing but people who are giving the voluntary efforts. It's an association for with the economic goal. See, advantage is there, limited life. Very important. Here you see, liability is limited in cooperative. Member of cooperative का liability limited है, unlimited नहीं है. लेकिन sole proprietorship, partnership, my dear student, advantage of cooperative, easy formation. गांव के लोग मिलके सब कम्युनिटी के आदमी एक साथ मिलके स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है स्टार्ट करना. और सबसे बड़ी बात है, liability is limited. Liability of members of the cooperative. जितना आप पकड़ लीजिए एक शेयर का एक मेंबर का 10 रुपीस है. अगर कोऑपरेटिव लोन वापस नहीं कर रहा है, इससे कोऑपरेटिव रिस्पांसिबिलिटी, नॉट द ओनर्स, दैट इज मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव. सो मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, बिजनेस स्टेबिलिटी रहता है, देयर इज अ चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी. और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. डेमोक्रेटिक मींस वेयर मेंबर्स कैन एक्ट एज अ लीडर ऑफ द बिजनेस और डिसीजन मेकिंग, they can participate in the decision making process. Government assistance and government support always there. Subsidies are provided by the government at time. But important things, nothing but disadvantages. क्या है? There is also chance of conflict. It's a long decision making process. जहाँ पे भी ज़्यादा आदमी होता है decision making में, वहाँ चांस है ओनर साहब का conflict होने का चांस रहता है. और डिसीजन मेकिंग लंबा समय ले लेता है, बहुत सर्कुलर टाइप होता है, सबको पूछना पड़ता है. वेरी एज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. नॉट एनफ कैपिटल. हाँ, कैपिटल का बहुत बिजनेस वुड लाइक टू ग्रो मोर एंड मोर, बट देयर इज अ चांस. अमूल इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ सक्सेस. हाँ, इन दिस वे यू कैन से यू कैन एबल टू मैनेज द फंड आल्सो कॉर्पोरेट. दिस इज द अल्टीमेट. My dear student, this is our part, joint stock company. It's very simple. Whatever weakness suffering by sole proprietorship, partnership, cooperative are removed by this form of business. That is called ultimate form of business. Where you see voluntary association of people who contribute money to carry your business. Very simple. किसी को जोड़ जबरदस्ती नहीं है, अपने से डिसीजन लेता है और कंट्रीब्यूट करता है पैसा. अगले एग्जांपल ले रिलायंस कंपनी स्टार्टेड बाय धीरूभाई अंबानी, मे बी प्रोमोटर, बट हियर वेयर मोस्ट ऑफ द इंडियन पब्लिक और मेनी पर्सन्स वर इन्वॉल्व और कंट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल ऑफ रिलायंस कंपनी. सो इट्स ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट मनी टू कैरी ऑन बिजनेस. दैट इज द मेन. Let's go in details. If we would like to know what is joint stock company, our question asks, we should write something. You see, my dear, a company, once again I am telling, as a company is an association of persons formed for carrying out business activities and has a legal status independent of its members. Very important. Member से वो अलग है, legal status. The company having own legal status, entity. We have learned in accounting, business entity concept. Same principle or concept is here. You will find exactly the business is independent from its members. It having own legal status. खुद का वजूद होगा legally. उसमें मालिक कुछ नहीं है, मालिक का अलग है और फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स अलग है. नाउ इन 2013 कंपनीज एक्ट इज अमेंडेड. द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द कौन सा एक्ट 2013. अर्लियर इट वाज 1956 कंपनीज एक्ट 1956. नाउ इट इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013. वेयर इट इज मेंशन
As per section 220 of 2013 Act, company means a company incorporated under the this act. उस एक्ट के अंडर में वो रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, और एनी अदर प्रीवियस लॉ जैसे 1956 एक्ट 1956 उसमें भी रजिस्टर्ड है वो कंपनी. बस बताओ दिस टू लाइन. एनी कंपनी मींस पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स formed a business and started incorporated under the act, Companies Act. It's a company. These shareholders, nothing but owners, they are the owners of the company. वो लोग क्या होता है, जो shareholder है, members है, वो owner of the company. और एक पार्टी है board of director, chief managing body elected by the shareholder. Shareholder क्या होता है, जनरल मीटिंग में एक ग्रुप ऑफ पर्सन पोर्टफोलियो बना के डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाता है, जो जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है पूरा बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए. ठीक है. सो यूजुअली द ओनर्स एक्सरसाइज इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस. जनरली ये होता है कि ओनर मालिक है, ओनर ही चलाता है, लेकिन इनडायरेक्टली चलाता है. वो अपॉइंट कर, ये सिलेक्ट कर सकता है और इलेक्ट कर सकता है इन द जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उनके द्वारा चलता है. द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स called shares. Entire capital of the business divided into small units. Each unit is known as share, which can be transferred freely from one shareholder to another. जिसका ये पब्लिक कंपनी का होगा, प्राइवेट कंपनी का नहीं होगा. माइंड, ये जो शेयर ट्रांसफरेबल है ना, ये ओनली फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी. जिसका शेयर मेरे पास है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है उस कंपनी का शेयर, मैं दूसरे को बेच सकता हूँ इन द स्टॉक मार्केट if it is listed to the another person. This is the main thing, is nothing but a association of persons formed carrying out the business activity and registered under Companies Act or incorporated under Companies Act of 2013 or the previous laws or previous act 1956 or other act. If it is registered or incorporated, then it is a company. Very simple. 2 lines are enough. Okay. Now come to the features. Very important. इसमें देखना बहुत मजा है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन, फर्स्ट प्रिंसिपल है आर्टिफिशियल पर्सन. बिजनेस को आर्टिफिशियल पर्सन बना गया, मींस एक पर्सन बनाया. जनरल नेचुरल पर्सन है, उसका वजूद होता है, उसका खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका डेब्ट होता है, ऑब्लिगेशन से. सिमिलरली बिजनेस और फॉर्म ऑफ कंपनी इज हैविंग देयर ओन एग्जिस्टेंस. इट्स दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन. एज इट इज क्रिएशन अंडर लॉ, occasion of law, and exist independent of its member. Independent है member से. Like natural person, a company can own property. कंपनी का खुद का प्रॉपर्टी होगा, उसमें शेयर होल्डर आके ये नहीं कर पाएगा, इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, और इनका डेब्ट करेगा, लोन भी ले सकता है. वो अपने नाम पे लोन लेगा, मालिक के नाम पे नहीं लेगा, मेंबर्स के नाम पे. केस भी कर सकता है, उसके केस भी हो सकता है. ठीक है. ये cannot breathe, eat, run, talk and so on, just like natural person. It is therefore called artificial person. Natural person क्या, हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चल पा रहा है, हाथ पा रहा है, लेकिन वो चल नहीं पा रहा है, लेकिन चलता है ऑफिशियल प्रोसेस में. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी. उसका खुद का वजूद होता है. ओनर्स एंड मेंबर्स आर डिफरेंट. इन अकाउंटिंग वी हैव लर्न क्या सीखा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. मालिक अलग और बिजनेस एक्टिविटी अलग, दोनों को मिक्सअप नहीं करना है. सेम प्रिंसिपल है. फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जब उससे जन्म हुआ, ये कंपनी एक्वायर्स आइडेंटिटी, खुद का आइडेंटिटी होगा डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स. मेंबर से अलग होगा. मेंबर का खुद का आइडेंटिटी होगा, उसके अगर अगेंस्ट केस होगा तो कंपनी कुछ नहीं करेगा, कुछ सोचेगा भी नहीं. कंपनी के ऊपर केस होगा कुछ एक्टिविटी में, तो ओनर भी उसके बारे में नहीं सोचेगा. Its assets liabilities are separate from its owner. Clear है. Law does not recognize business and owners as the same. Law, in the eye of law, both are separate. Company and its members are different. Very important character. Now formation. ये company formation है, it's not a complex process. It's to follow some formalities or legal formalities. See, many documents are to prepare. Formation of company, many preparation of several documents. Shareholders, however, do not have the right to involve in the day-to-day planning activities. Compliance with several legal requirements before it can start functioning in any of the functioning. Incorporation of fund, very important.
इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज इज कंपल्सरी अंडर द कंपनी से, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उसको रिकॉग्निशन मिलना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लो, कोई 1956 एक्ट हो सकता है, ठीक है। सच कंपनीज व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड एक्ट 1956 होता है और एनी अदर लॉ shall be included. Okay, next, perpetual succession, very interesting. A company being created under law, created by law, run by law, and by law, ठीक है, it will only cease to exist when specific procedure for its closure called winding up is completed. ये बंद कब होगा? जब वाइंडिंग अप प्रोसेस फॉलो होगा तब जाके, अदरवाइज ये चलता है परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है ना। मालिक मर जाए, ओनर्स मर जाए, शेयर होल्डर चले जाए बेच के, लेकिन वो चलता रहेगा, कंपनी से लॉ ही चलाएगा इसको, कोई रुकने वाला नहीं है। एज इट स्टार्टेड बाय लॉ, रन बाय लॉ, कंट्रोल्ड बाय लॉ एंड बाय आल्सो लॉ। सोसाइटीज लॉ मींस कंट्रीज लॉ, नथिंग बट एक्ट। नेक्स्ट, very important my dear, that is called control. बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटीज कंट्रोल करना, डिसीजन लेना टाइम टू टाइम is done by the board of directors, and board of directors are selected or elected in the general meeting by the shareholders. Are you getting? It's totally in the hand of the expert person. Board of directors are generally expert person which appoints the top management its official running the business. Directors hold a position immense significance. They are directly accountable to the shareholders. Mind it, directly accountable to the shareholders. Shareholders का जो जनरल मीटिंग है उसमें बोलना पड़ेगा, इसमें क्या है, बिजनेस में क्यों हुआ, क्यों फायदा हुआ, क्यों फायदा नहीं हुआ, व्हाट आर रीजंस फॉर एनी प्रॉब्लम। However, do not have the right to involve in the day-to-day running of the business. Shareholder दिन ब दिन काम में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट, लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप में नहीं है, जो लायबिलिटी ऑफ शेयरहोल्डर और यू कैन से मेंबर आर लिमिटेड। आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा तो आपका लायबिलिटी मैक्सिमम 100 रुपीस ही है। अगर 100 रुपए का शेयर 80 रुपए दिया, 20 रुपए अनकॉल्ड है, मतलब दिया नहीं, इतना तक लायबिलिटी आपका है, 20 रुपीस बाद में देंगे, ठीक है। ये देखिए, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, ओनली द प्राइस ऑफ शेयर्स देयर इन द कंपनी, उससे ज्यादा नहीं देगा शेयरहोल्डर्स, ठीक है। द क्रेडिटर्स कैन यूज ओनली the assets of the company to settle their claims. जिसको पैसा मिलना है वो, उसको अगर पैसा नहीं मिल रहा है, वो ओनर्स का और शेयरहोल्डर का घर का एसेट को एसेट यूज नहीं, क्लेम नहीं कर सकता, वो कंपनी का एसेट के ऊपर केस कर सकता है, क्लेम कर सकता है, ठीक है। दिस इज द फैसिलिटी एंजॉयड बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी। द लायबिलिटी ऑफ ओनर्स आर इज लिमिटेड लायबिलिटी, यू कैन से लिमिटेड लायबिलिटी। वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, कॉमन सील। एज कंपनी इज एन इलीगल एंटिटी, वो बात नहीं कर सकता है, वो चल नहीं सकता, लेकिन उसका जो ड्राफ्ट बनता है, उसको साइन होता है, और साइन तब तक वो वैलिड नहीं जब तक उसका कॉमन सील नहीं लगेगा। जब तक वो कंपनी का सील यूज नहीं होगा इन ए डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट वैलिड, मतलब इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द मार्केट और यू कैन से एनवायरनमेंट और इन द सोसाइटी। तो एक सील होना जरूरी है उसके लिए। पर्सन कैन नॉट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ। कंपनी खुद से तो आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद साइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका सील है, वो सील लग गया मतलब मोहर लग गया तो वैलिड हो गया, तो कॉमन सील मस्ट। नेक्स्ट, रिस्क बेयरिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। द रिस्क ऑफ लॉसेस कंपनी इज बोर्न बाय ऑल शेयरहोल्डर। कोई लॉस होता है अल्टीमेट कौन बेयर करता है? शेयरहोल्डर, लेकिन वो बेचारा डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता डायरेक्टली, ओनली इन द जनरल मीटिंग में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। सो देयर इज ए प्रॉब्लम आल्सो, बट रिस्क बेयरिंग एंड नथिंग बट लॉस is suffering by the owner. Owner has to suffer loss, nothing but shareholders. Now, what are merits, or you can say benefits in the? I told earlier. Again, I am telling, liability is limited of members. कोई ज़्यादा नहीं. Company fail to return the loan, it doesn't mean that shareholder will pay from its personal asset. No, the maximum contribution, whatever contributed in the business as a share capital, that is maximum liability of the shareholder. Transfer of interest. अभी मेरे पास शेयर है और कोई आपके पास शेयर है मेरा कंपनी का,
आप मेरे कंपनी का एक्टिविटी में आप इंटरेस्टेड नहीं है, हमारा परफॉर्मेंस से आप खुश नहीं है, आप क्या करेंगे, मेरा शेयर आप बेच देंगे थर्ड पार्टी, किसी को भी बेच सकते हैं इन द स्टॉक मार्केट. That facility, liquidity facility also enjoying. It's a very important thing, my dear. That facility, transferability of ownership. It's enjoyed by the shareholders, where it is not exist in the partnership and sole proprietorship. Next, perpetual existence. Means वो जिंदा रहेगा, चलता रहेगा, कोई मर गया, कोई रिटायर्ड हो गया, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कोई मेंबर शेयर होल्डर आता नहीं है, कंपनी विल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटी इवन इफ ऑल मेंबर्स डाई. सब मेंबर मर जाने से भी, सब शेयर होल्डर मर जाने से बिजनेस विल रन. ठीक है. इट कैन बी ओनली लिक्विडेटेड, लेकिन बंद कब हो सकता है, ओनली अंडर कंपनीज एक्ट प्रोविजन, एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. बंद करना है तो वो मर सकता है ओनली बाय द लॉ. ठीक है. नेक्स्ट देखो, स्कोप फॉर एक्सपेंशन. देयर इज, अरे आज इस देश में है, पूरा दुनिया भर में स्प्रेड कर सकता है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू ग्रो एवरीवेयर, इट कैन बी स्प्रेड. सो ए फॉर मल्टी, इट कैन बिकम, ए कंपनी कैन बिकम मल्टीनेशनल कंपनी आल्सो. सो दिस फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल इन द company form of business. That is very important, which is not available in the sole proprietorship, partnership and cooperative. Yeah, join in the family. But it is very interesting, their business can be expanded as much as possible. Next, professional management. Expert persons are appointed as a director, managers, as a क्या बोलते हैं, supervisor, general manager. Whoever appointed, they are really having the knowledge, skills persons are appointed. So experts are doing the all activities. That's why success is, most of the cases find success guaranteed. Okay. Next, limitation. Every coin has two sides. You see, कंपनी का भी लिमिटेशन है. क्या क्या लिमिटेशन है? कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन. ये बनाने में बहुत डिफिकल्टीज है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज है, बहुत सारे प्रोसेस है. प्रोमोटर्स हैज टू परफॉर्म ऑल दिस एक्टिविटीज. ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू प्रिपेयर्ड. क्लियर? लीगल रिक्वायरमेंट्स आर टू फुलफिल. लैक ऑफ सिक्रेसी. जनरली इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोई छुपा नहीं सकता, सब रिपोर्ट करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट सबको सबमिट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम. कंपनी रजिस्टर ऑफिस में जमा करना पड़ेगा. सेबी को गाइडलाइंस है, सेबी का गाइडलाइंस, मतलब पब्लिक का बारे में पब्लिक को बताना होगा सब कुछ. नथिंग इज सीक्रेट. सो ये कमी है. जो सो ट्रेडिंग का फायदा है, पार्टनरशिप में उसका फायदा है, सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है. इम्पर्सनल वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो वो शेयर होल्डर घर में पड़ा हुआ है, वर्क कर रहा है, मैनेजर, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो दोनों के बीच में टच नहीं है, पर्सनल टच नहीं है. ठीक है. फिर कस्टमर्स और ओनर्स के बीच में नहीं हो रहा है टच. देयर इज टेंड्स टू 0% chance to personal contact. So separation, because of separation of ownership and management, leads to situation which there is a lack of effort as well as personal involvement in the part of officers of a company. Personal relation very important also. In some cases also it is found that owner personally can be motivated the customer and others, but it is absent in this case. Numerous regulation, बहुत सारे रेगुलेशन है कंपनी को फॉलो करना है. लीगल प्रोविजन एक्ट है, बहुत सारे अथॉरिटीज है, उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है टाइम टू टाइम. तो कंपनी बार्डन विद द न्यूमरस रेस्ट्रिक्शन रिस्पेक्ट ऑफ बिड इंक्लूडिंग ऑडिट, रिपोर्टिंग, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सब पूरा करना ही पड़ेगा टाइम टू टाइम. डिले इन डिसीजन मेकिंग. कंपनी में बहुत सारा मुश्किल होता है, डिसीजन ले नहीं पाता. कैसे? कंपनी टाइम लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब मिलके डिसीजन लेता है मीटिंग में, अकेला नहीं ले सकता फटाफट. डेमोक्रेटिकली मैनेज होता है नो डाउट, लेकिन एक्चुअली डिसीजन ग्रुप ऑफ पर्संस लेते हैं. ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर. ओलिगारिक मैनेजमेंट मींस ओलिगारिक मैनेजमेंट. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने के लिए डेमोक्रेटिक है कि shareholders are participating indirectly, but in practical example, कौन shareholder है? Scattered है throughout the country. when general meeting होता है, कुछ part of कुछ लोग आके participate करता है
मीटिंग में, और मीटिंग में करने के बाद डिसीजन लिया जाता है कौन डायरेक्टर बनेगा। जनरली वो ग्रुप ऑफ पर्सन वो जिसके पास मेजोरिटी शेयर है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर है और कंसंट्रेटेड विद इन द नोन पर्सन, दे सिट टुगेदर एंड कंप्लीट द मैटर। सो ये जो प्रोसेस है ना, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में रह जाता है कंट्रोलिंग के पास। नाम का है डेमोक्रेटिक, मतलब सब शेयर होल्डर आके वो मीटिंग में सिलेक्ट, एक्चुअली होता नहीं है, इन प्रैक्टिकली इट्स नॉट हैपन। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। देखो बिजनेस में स्टेक होल्डर्स बहुत है, सप्लायर है, शेयर होल्डर्स है, कस्टमर्स है, वर्कर्स है, सबका इंटरेस्ट है। कभी कभी शेयर होल्डर मांगता है हाई रिटर्न्स, वो खुश नहीं कर पाते, मीन्स मैनेजमेंट अनएबल टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। सैलरी ज़्यादा मांगता है वर्कर्स, मैं इंटरेस्टेड इन हायर सैलरी, कंज्यूमर डिजायर हायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस। These demands pose problem in the managing the company, and it's often become difficult to satisfy the diverse interest. Diverse interest को satisfy करना मुश्किल हो जाता है। Next, these are the weakness. Now types of company. My dear student, there are two types generally: private company and public company. But okay, one person company we will discuss later on. Let us first understand private company. Very good. उसमें कुछ नहीं है, नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर डिपेंड है। 2 पर्सन चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 200, ठीक है। वो ओनर से चल सकता है प्राइवेट कंपनी। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, रेस्ट्रिक्टेड है। वो जो मेंबर बनेगा, शेयर होल्डर बनेगा, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। देन तीनों पॉइंट मेन है, डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब, पब्लिक से पैसा कलेक्ट नहीं कर सकता, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता कंट्रीब्यूट करो, शेयर खरीदो। These three are very important. These two are very important. This is number minimum and maximum. Okay? So these are the private company. If company follow these three things, it belongs to private company. Now what are the benefits they are enjoying? You see? A private company can form by only 2 members, 2 से स्टार्ट कर सकता हूँ। Whereas 7 आदमी चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए। No need to issue the prospectus, कि लेकिन पब्लिक कंपनी में इशू करना पड़ता है। Allotment of share can be done without any minimum subscription, कोई रूल है मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं करने से भी शेयर दे सकता है मालिक को। प्राइवेट कंपनी needs to have only 2 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर होने से हो जाता है, ठीक है। The private company is not required to keep any index of members. Members का index नहीं मेंटेन करने से भी होगा। So these are benefits enjoyed by the private company, my dear student. Try to understand this thing. These are the benefits enjoyed by the private limited company. Now public limited company means simple, which is not private company. तो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो भी कंडीशन क्या है, मिनिमम 7% होना पड़ेगा, मैक्सिमम नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। डायरेक्टर 3 होना पड़ेगा, लेकिन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। शेयर होल्डर शेयर सर्टिफिकेट भेज सकता है दूसरे के पास ओनरशिप, और कोई बाधा नहीं है पब्लिक से पैसा लेने के लिए। सो दिस आर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दिस बेनिफिट्स आर देयर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 पर्सन company. It was introduced in 2013, Companies Act 2013. Here it is clearly mentioned, as you know, private company में क्या है, 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक कंपनी में कैसे मिनिमम 3 चाहिए। तो अकेला एक आदमी कंपनी कैसे होगा, नहीं होगा। इसीलिए ये 2013 में जाके अमेंडमेंट हुआ। Now as per section 262 of the Companies Act, a company can be started with just 1 director and 1 member. ये इंट्रोड्यूस किया गया, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि अकेला एक आदमी स्टार्ट कर सकता है कंपनी, बाद में इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड, बट इनिशियली इट कैन स्टार्टेड दैट प्रोविजन ऑफ प्रिविलेज गिवन बाय द Companies Act 2013. It is a form of company where compliance requirement are lesser, minimum requirements है, formalities है. This is the facility provided by this act.
Now difference in it, already I told. See, minimum 7, maximum public limited और प्राइवेट to डायरेक्टर. तीन चीजें इसमें, दो चाहिए. इसमें इंडेक्स मेंबर कंपलसरी, इसमें नहीं है. इसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर रेस्ट्रिक्शन, नॉन रेस्ट्रिक्शन, इसमें रेस्ट्रिक्शन है. पब्लिक को इनवाइट कर सकता है कंट्रीब्यूट करने के लिए शेयर डिवेंचर में. प्राइवेट मेंबर नहीं करेगा, पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगा. ठीक है. Now these are the questions, my dear students. You can recapitulate. We can recapitulate our class. We have learned the previous knowledge. We have recalled. We have learned the meaning of company, characteristics of company, merits, demerits, and types of companies. Whatever we have discussed, I hope all of you have understood. And if there are some questions are there, you go through, and hope you will feel free to contact me if any doubt. With this word, thank you.